So hello everyone, I'm Abhishek from IIT BHU and today we are going to discuss the basics of matrix method which are going to be used in optics. Why we are discussing this matrix method? As you know, in optics there is reflection, refractions, and we can draw ray diagrams. So what is the need of understanding the matrices? Because we are going to express the refractions, reflections in the terms of equations and in those matrices. So you must know how to use this matrix and how we are going to use a equation in a matrix form. Okay, so I'm starting with the very basics things. जैसे कि एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लो. सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स, a name of M matrix. Okay, A B C D E F, these are the components of this matrix of order 2 cross 3, and I am taking a different matrix, suppose G, H and I. Okay, so if I am saying what is the product of M cross N, I am asking what is the product of M cross N of matrix. You must know how we can find the product of matrix. This is like this. Okay, row column. So what will be A G plus B H plus C I. A G plus B H plus C I. Then again this row, this column, D D G plus E H plus F I. Okay, so this is a matrix of 2 cross 3. This is a matrix of 3 cross 1. And this is our final matrix of order 2 cross 1 matrix, 2 rows and 1 column. Okay, so here you can use a trick. I'm saying a trick which is going to be fundamental in all matrix multiplications. Okay, like in this case, suppose if the order is M cross N and M cross P, suppose, and this is going to be multiplied to this. So what will be the order of the final matrix? M cross P. ठीक है, M cross P. ये हमेशा होगा क्योंकि रो, ये रो है ना, और रो से जो आई मीन कॉलम है, तो जितना कॉलम रहेगा उससे मल्टीप्लाई होगा उतने ही कॉलम बनेंगे. तो ये हमेशा होने वाला है. ठीक है, तो ये हो गई बहुत बेसिक सी बात. इसके बाद मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कोई इक्वेशंस दे रखी हो, suppose equations is provided to us and we have to express it in a matrix form. So ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिस्कस करते हैं या कैसे वो वर्क करता है, कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं. सपोज कुछ भी इक्वेशन ले लो, कुछ भी इक्वेशन ले लो. सपोज मैंने ले लिया x1 इक्वल्स टू a y1 प्लस b y2. ओके, एंड x2 इक्वल्स टू C y1 plus D y2. So how we are going to express this equation in matrix form? x1 x2. We need what? ay1 plus by2. Okay, so we want, you can see y1 common, y2 is common. Okay, so we have to fill the matrix in the form so that we can get this product. How we are going to do that? Suppose a y1 अभी बताया ना मैंने, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो कॉलम. तो अगर मैं यहाँ पे a रख दे रहा हूँ, यहाँ पे b रख दे रहा हूँ, तो a y1 और ये 2 है. ठीक है, y2 है, तो a y1 प्लस b y2. ठीक है, पहला फॉर्म आ गया. एंड तो ये हो गया x1 के लिए. और अगर ये c y1 प्लस d y2 हमें चाहिए, तो c जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, c देन d. समझा? तो देखो इस इक्वेशन को, इस दो इक्वेशन को मैंने इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ये सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द ऑप्टिक्स इन मैट्रिक्स मेथड्स. ठीक है, यू कांट डील विद इट. सो ये सीखना बहुत ज़रूरी है. अब सपोज मान लो, क्योंकि अब इतने सिंपल हमेशा इक्वेशंस नहीं आएंगे, क्या हो सकता है और भी
ट्रिक किया जा सकता है। ट्रिक इन द सेंस कि मान लो ये जो y1 है और y2 है, इसे भी किसी अलग फॉर्म में लिख रखा है हमने। सपोज d के बाद e पे चले जाते हैं, e एंड समथिंग z1 प्लस f z2 देन ef g z1 प्लस gh z2। ठीक है, अगेन वी आर नॉट हैविंग z1 कॉमन एंड हियर z2 कॉमन। तो देखो यहाँ पे y1 है, हम इसके लिए एक अलग से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एंड वी विल फॉलो दिस सेम मल्टीप्लिकेशन मेथड इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये एक्सटेंशन बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन फॉर्म कैसे करते हैं इसे भी थोड़ा रिप्रेजेंट करके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे y1 y2 है तो इस केस में भी कैसे करेंगे, ये आ गया z1 z2 कॉमन थिंग्स एंड हमें चाहिए y1 के लिए e z1 प्लस f। देखो e z1 प्लस सॉरी f e z1 प्लस f z2 एंड यहाँ पे g एंड h। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y1 और x1 x2 के लिए। अब ये y1 y2 का जो मैट्रिक्स है हम वो इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, समझ आ रहा है? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो ये हो गया सब्सटीट्यूशन e f g h z1 z2। ओके, सो देखो ये आ गया मैट्रिक्स का फॉर्म। अब इससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और ये इसी तरह से एक्सटेंड करती जा सकती है। अगर देखो इसका एग्जाम मेनली पर्पस क्या है इस मैट्रिक्स मेथड को समझने का, देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ गेटिंग इनफाइनाइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अभी क्या होता था बचपन में कि एक कॉन्वेक्स लेंस आता था, अब हो सकता है कि कॉनकेव लेंस आ जाए एक और, फिर कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, फिर कॉनकेव आ जाए, ऐसे इन्फिनाइट आ जाए। ठीक है, तो भी उसे डील किया जा सकता है मैट्रिक्स मेथड से। या इवन जो हम लोग प्रॉब्लम्स करते थे इमेज डिस्टेंस वगैरह का, वो आगे सीखेंगे कैसे करते थे। तो इस मैट्रिक्स मेथड का सीखने का पर्पस ही यही है कि वी कैन डील विथ मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ सिंगल वे। ओके, सो होपफुली आई वाज एबल टू डिलीवर दिस हियर। दिस इज़ द बेसिक पार्ट यू मस्ट नो। तो पहले इसे समझ लेना है। अगर कोई डाउट है तो मैं अपना ईमेल ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल मेथड्स एज अ ट्रांसलेशनल एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट विल हैपन देयर कि जैसे होता क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे इस होमोजीनियस पार्ट में किसी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो वहाँ के मैट्रिक्सेस को कैसे लिखना है ये नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।